It's 17 hours. Good evening, sir. Good evening, Aryan. Good evening, sir. अभी किसने ज्वाइन नहीं किया है लगता है. There was one boy, Pushkar, he joined, but again, I think maybe some network issue. He has logged out. So the moment Yeah, one maybe, more will sir. join, we'll start. We will not wait. Wait. Okay, sir. So I'm just waiting for one more to join, and then we'll start. Good evening, sir. Anmol, good evening. And now we will start, and those who will join later on, they will join. So good evening, Aryan and Anmol. As of now, we have two participants. Good evening, sir. Good evening. So we are now starting our second episode of Body, Mind and Soul.
And Yes, sir. let's see what is there today. So, what we have discussed in the last session, we will do a recap. We discussed letter to grandson. There was a video. We discussed what is attitude and how with the right attitude we get right knowledge. With the help of right knowledge, we get the right skill, and the right skill makes us employable, or you can say resourceful in this society. We also discussed about body, mind, and soul, which is ABC. Also, we can remember appearance, behavior, and communication. This is the, you can say, summary of personality. I have a good appearance, I have a good knowledge and communication, and I have good behavior. Then we discussed about soft skills versus hard or technical skill, how they are important. And we found that technical skill is something which will put you in a job, in an employment. But from that point, if you want to develop in that organization, there is something called soft skill, which is going to help you. We also discussed why English is important. We discussed LSRW. So with the help of listening and reading, we gain informations. And with the help of speaking and writing, we display what we have got. We also discussed power of communication. If we have good communication, whichever field we are working or we are in, there is no one who can stop us. It's a great skill, communication skill. We discussed about public speaking, the importance of content, voice, and body language. And we found that the most important one is body language, then your voice, and then content. So whenever we have to speak on a stage in front of audience, we have to take care of body language and voice also. Then we discussed timetable. We all should have a timetable so that our 24 hours is completely controlled. We are not wasting it. We are devoting that time on constructive things. And we discussed about self-reflection. Every day in the night, ask yourself how I have spent my day. Was it good? Where I need to improve myself? And again in the morning after getting up, ask yourself how I'm going to spend the day and how I'm going to make my day the best day of my life. So these are the things which we discussed in the last class. Now I have sent a video to all of you, which was basically based on artificial intelligence of Dr. Vivek Bindra. So have you gone through it, Aryan and Anmol? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So can you tell me, again I will ask the same old question, that the best part of that video which has forced you to think, or which has given you some piece of information which you want to use in your life, apply in your life? Sir, we have to change our what we can say. Sir, we have to change our skills. Okay. Means we have to polish our skills day by day, or upgrade our skills day by day, from evolution to revolution. Very good. This is a mainly fact. Okay, okay. Anmol, you have any point from that video? Yes, sir. First thing is evolution is needed for every person. Learning new skills is very much important. And second example he have given, that the example of car and house and jewelry, that when we purchase a car, the depreciation on the car is सर वो depreciation लगना start हो जाता है हर डे. तो मैं इसको implement करना चाहूंगी लाइफ पे कि कुछ ऐसे एसेट को मैं इकट्ठा करूं जिस पे depreciation ना लगे. मैं ऐसा ये thinking मैंने सोचा है करना. Very good. And I will suggest, if it is possible, switch on your camera so that I can also feel that I am with two other persons. Otherwise, only I am visible to myself. Nobody else is there. Yes, I can see Aryan. Good. Yes, Anmol also is there. Right. Okay. Thank you very much.
So this AI is going to come, right? And how we are going to prepare ourselves to survive in this world with AI is the utmost challenge for all of us. And we are going to discuss that in today's session. So basically, the summary of that video was your job is at stake. If you are not preparing yourself, AI is slowly going to take your job. So whatever jobs you can say this robots can do, that job is going to disappear. Like driver's job will disappear, or mason's job will disappear, courier boy will disappear, right? So what are skills we need to develop so that I can face that AI thing in my future? So this is artificial intelligence, which is going to be a big thing in future. Jobs AI can replace. So we will see one by one. Telemarketing. Right now we have various people, or can say ladies and gentlemen, they are working as telemarketer. They are calling and they are asking people to purchase something, some products. Now that complete system will go on with robots. AI will take charge of that, right? So job of telemarketers is at stake. Bookkeeping. Bookkeeping means all maintaining of record and accounts. Computer will take care of that. Already you have seen, once you will have those softwares, Tally and all, everything is recorded. There's no need of manual intervention. Receptionist, there's no need of a human touch. There will be robots or AI machines which will take care of that. Courier boys, drone will take care of all these courier services. Proofreaders, computer will check, no need of human. Pushkar, if you are listening me, you can switch on your camera. Then retail salespeople. So I will tell you, there is something called Amazon Go. There is a retail store where there is no, you can say, salesperson, right? You are getting driven by AI, what to purchase, from where to purchase, at what shelf, which item is there, billing, you can say security guard things, everything is done by AI. So retail salespeople also, these jobs will go away. Drivers, they will go away. Teachers, the smart class, already it has come. Now the time will come when robots will teach. They have all the informations. You just go switch on the robot, press chapter number and subject and all, and it will teach you. You ask question, it is having all the answers with it. It will explain to you, right? Doctors, soldiers, masons, mechanics, all the jobs, they are going to be slowly taken over by AI machines. Now, we will also discuss jobs AI cannot replace. HR managers, because human intervention is there. Marketing managers, again, human intervention is there. You have to go and discuss your things with someone else. Event planners, you need to understand what my customer is wanting. You have to find out his emotions, his thoughts. Then writers, because again, thoughts are there. You can write with emotions only if you are a human being. Graphic designers, software developers, editors, public relations manager. So wherever emotions are working, wherever human touch is required, there we will work. Where it is a job which anyone can do, then that job will be taken over by AI machines. So now, because of all these changes which is happening, there are many new interesting career options also coming. Like we have something called mechatronics coming into picture. Mechanics plus electronics, something new has come. There's something called hydroponics. Now, I think you must have seen the new education policy. In that policy, if you will see, you can take mathematics and music also. You will take mathematics and music, both of them together. So I was wondering how this is going to work, because as of now, if somebody takes mathematics and music, he cannot survive in this world, at least in our country.
Then I saw this hydroponics. This is one field which is a combination of music plus botany. In this hydroponics, they grow plants with the help of music. They are growing plants with the help of music. So when you are growing plants, you should know the knowledge of botany. And because music is involved, you should also have a good hand on music. So this type of interesting career options are also going to come. Then you have professional YouTuber. You all know that. That is only by humans. Then you have ethical hacker, wedding planner. You have puppetry, tea testing, photonics. There are so many new things also. So in whichever field you are trying to go, you are pursuing your career, you are studying, I will also request that try to search and try to find out what different I can do in that field, which no one has done yet. Okay. Now, this is one report which has come from World Economic Forum, 2016 report is this. And this report is telling that in 2020, already it has passed, these are the 10 top skills which all of us should have. Now, if you see complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. These are the 10 top skills which all the youth of this generation should have. Now, if you will ask yourself, you ask your teachers where you are studying, you will find that these skills are not part of your curriculum, isn't it? It is part of your curriculum. No, Anmol, no, it is not there. No, sir. Aryan, have you heard of these? No. Yes, So no, sir, no, sir. When my college is not teaching me these skills, what I will do? Then we have to find out some other platform where I can go and I can equip myself with these skills, right? And if I will show you the last slide, the slide of last session, these are the 10 top soft skills, which are not part of curriculum. Strong work ethic, dependable, positive attitude, self-motivated, team-oriented, organized, works well under pressure, effective communicator, flexible, confident. These are the 10 top soft skills, which I should have, we should have, all of us should have. Now I want one by one, because only 2 are there. So one skill Aryan will explain, and the second one Anmol will explain. And where you will miss, I will fill up. So Aryan, you start with the first one, strong work ethic. What do you mean by strong work ethic? Sir, strong work ethic means to dedicated in work. Like I am doing preparing for hotel management. Okay. And I know this is very different thing and very what I can say, sir, very different. Matlab, it has more struggle. You can and in Hindi also. The main thing is thought. yes, sir. Like in hotel management, after doing hotel management, you have to do like waiter and floor cleaner and etc. Dishwashing. All are there. But my passion is to do hotel management, so I will doing. I know the fact कि क्या होने वाला in future मेरे साथ. वहीं sir same case my friend, he is doing BTech. Okay. And he don't have to do these type of works like floor cleaning, waiter, and dishwashing. So I think that I have the ethic to do work like that. So I will doing. Okay, I will explain you. You have spoken a little bit close to the point, but थोड़ा सा बाहर है. Strong work ethic का मतलब क्या हो गया कि whatever I do, जो भी मुझे काम मिला है, उस काम को मैं ethical तरीके से करता हूँ. यानी कि आपने सुना होगा कि there's a government employee, he has to work for 8 hours or he has to do a work properly, but वो कहीं न कहीं he becomes lazy, he does not do his work, right? तो ethic का मतलब हो गया कि मेरा बॉस मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, right? मेरा टाइम चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है. Whatever my work is, my job is, I am going to do it with
complete punctuality. Ethic, I believe in ethics, right? मतलब जो भी मुझे काम मिलेगा मेरे लाइफ में, मेरी कंपनी में, मुझे कोई नोटिस करे, मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई चेक करे या ना करे, मैं उसको बिल्कुल ढंग से सही तरीके से करूंगा. दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. ऐसे आदमी को किसी बॉस की आवश्यकता नहीं होती है. सेल्फ ड्रिवन है ये अपना टाइम पे आएगा, काम करेगा और जाएगा. इसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दैट इज द फर्स्ट स्किल, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. अनमोल, सेकंड वन, डिपेंडेबल. Yes, I think dependable means we should not depend on others for our work. We should always depend on us for our work. Like हमें पता होना चाहिए कि ये वर्क हमारा है, तो हम उसको अपना टाइम के अकॉर्डिंग करके कंप्लीट कर ले. जब हम किसी का वेट करते हैं कि ये भी हमारा सपोर्ट करेगा उस काम में, या फिर किसी के इंतज़ार में रह जाते हैं कि हाँ ये काम उनके हेल्प से भी हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो काम होने के बजाय इनकम्प्लीट रह जाता है. तो ये बेसिक चीज़ हम लोग को दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि हमसे बेटर हमारा काम कोई बेटर नहीं कर सकता. हमारा काम सबसे अच्छा हम ही कर सकते हैं, तो उसको ड्यू टाइम से पहले कंप्लीट करके उसको हम लोग भले ही किसी और की हेल्प से चेक करा ले, बट खुद पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए. इंडिपेंडेंट होकर हमें काम करना चाहिए. आई थिंक सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट. ये भी थोड़ा सा ट्रैक से हट करके है. आई विल मेक यू क्लियर. डिपेंडेबल का मतलब होता है कि आई कैन डिपेंड ऑन यू. सपोज आई एम द बॉस इन अ कंपनी एंड अनमोल यू आर माई सबॉर्डिनेट. आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो यू आर डिपेंडेबल. मतलब मैं आप पे काम को छोड़ करके इत्मीनान से बैठ सकता हूं. आई नो दैट जब ये काम मैंने अनमोल को दिया है तो वो काम ठीक से हो जाएगा. यू आर डिपेंडेबल. आप भरोसा करने के काबिल हैं. ये काम तभी होगा जब आपने अपने काम से, अपने बिहेवियर से वो ट्रस्ट बनाया हो अपने बॉस के साथ में. सो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, यानी कि मैं अपना काम ढंग से करता हूं, चाहे मुझे कोई चेक करे या ना करे. डिपेंडेबल मतलब मैं डिपेंडेबल हूं, मेरे ऊपर भरोसा किया जा सकता है. नंबर थर्ड, पॉजिटिव एटीट्यूड. आर्यन. सर, इन पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब अपने आप में हमेशा हैप्पी रहना कि ये मैं कर सकता हूँ. मतलब कभी किसी काम को छोटा नहीं लेना या किसी को बड़ा नहीं समझना. मतलब अपने पे घमंड नहीं करना. सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी क्लियर. मेरे रास्ते में, इन माई वे, whatever obstacles come, whatever problems come, I am not going to give up. मैं हमेशा challenges को, problems को आराम से एनालाइज करके, समझ करके मैं उसको सॉल्व करता हूँ. राइट? जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, द एग्जांपल ऑफ आवर सिटी मुजफ्फरपुर. आप बाहर निकलें, रोड पे रोड टूटा हुआ है, या गार्बेज है, या ट्रैफिक जैम है. There are lots of problems in our city. तो हम क्या करें? If I have negative attitude, तो हम क्या करेंगे? हम इस शहर से भाग जाएंगे. If I have positive, I will try कि मैं कैसे लोगों के साथ मिल करके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूं. How I can support the government, the administration to make my city better. कुछ भी हो जाए, I am always going to be positive. I am always going to find the silver lining in the cloud. That is positive attitude. Anmol, self-motivated. सेल्फ मोटिवेटेड तो बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें मोटिवेशन तो मिलना शुरू हो जाता है और हम बिल्कुल अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं. जैसे कि कोई टीचर अगर हमें मोटिवेट करता है, देन तो हम लोग अपना काम अच्छे से करते हैं. बट जब वो टीचर का साथ छूट जाता है तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन ही होता है जो हम लोग को सपोर्ट करता है. और जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है, या फिर हमें किस चीज़ से सेल्फ मोटिवेशन का सबसे ओरिएंटेशन क्या है अगर बात किया जाए, तो जब हम लोग किसी काम को बहुत ही अच्छे से मन लगा के करते हैं और वो चीज़ हम लोग को रिजल्ट देने लगता है, तो वो हमारा सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है. लाइक कि अगर हम उस काम को करेंगे 100%, तो वो सेल्फ मोटिवेशन है, ये हम लोग को मोटिवेट कर रहा है. तो ये काम को हम लोग कर लेंगे एंड देन आफ्टर, अगर कुछ ऐसे हम एग्जांपल दे दें कि अगर किसी को रूम क्लीन करने से सबसे जल्दी मोटिवेशन मिलता है, मेरे ख्याल से खुशी मिलती है, एक शॉर्ट टर्म खुशी मिलती है.
तो अगर किसी के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना शॉर्ट टर्म खुशी है, देन आफ्टर वो अपना कोई भी बोर्डिंग सा काम उसके बाद करेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है। तो हर टाइम जैसे एक्सरसाइज हो गया, फिर फिजिकल वर्कआउट, ये सब बहुत लोगों के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का कारण बनता है। या फिर खुद को मोटिवेट करने के लिए हमने कुछ न्यू स्किल्स को सीखना पड़ता है। अगर हम लोग न्यू स्किल्स नहीं सीखेंगे, देन एवरी डे अगर हम लोग सेम चीज रिपीट करेंगे तो रिजल्ट्स भी सेम ही आएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी हमें कहा था। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम लोगों को फर्स्ट थिंग ये भी है कि इनोवेटिव होना पड़ता है, क्रिएटिव होंगे तभी सेल्फ मोटिवेशन आएगा। दूसरा कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस। और तीसरा बात ये हो सकता है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अगर ये टीचर है हमारे लाइफ में तो ही हम मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। हमें खुद का सेल्फ मोटिवेशन मींस सेल्फ लग गया, तो खुद का मोटिवेशन क्रिएट करना आना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, फैंटास्टिक। सो अनमोल ने बहुत पते की बात कही कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरे लाइफ में मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। अगर मुझे इस बॉडी माइंड सोल वर्कशॉप को करके, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है तो मुझे ये करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। और एक बात और भी है, आपकी लाइफ में एक ऐसा बड़ा गोल होना चाहिए जिसको चेस करने में आपको मजा आ रहा हो, एंड दैट गोल इज गोइंग टू गिव यू सेल्फ मोटिवेशन, राइट। तो आप देखिए कि मैं अपने गोल को कितना बड़ा कर लूं कि उसको पाने के लिए आई विल बिकम ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड। लाइक एग्जाम्पल देता हूं, एक लास्ट एग्जाम्पल, कि जब आप जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे, तो एक बहुत ही लंबी चढ़ाई है, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं चढ़ जाऊंगा तो माता का दर्शन हो जाएगा और मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप उस मोटिवेशन में, उस सेल्फ मोटिवेशन में आप उस पहाड़ को चढ़ते चले जाते हैं। सो ऐसा ही आपके पास अगर कोई बहुत ही प्यारा लक्ष्य हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट नो वन इज टेलिंग यू एनीथिंग, एवरी डे मॉर्निंग यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। ओके आर्यन, टीम ओरिएंटेड इजी है बहुत। यस सर, टीम ओरिएंटेशन सर बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर कोई प्रोजेक्ट मिले, अगर टीम बेसिस पे है, तो अगर टीम अगर सही नहीं होगी मेरी, तो सर वो वर्क पूरा नहीं हो सकता। जैसे वेडिंग प्लानर, सर वेडिंग प्लानर में एक अच्छा टीम होगा तभी सर वो वेडिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं वो लोग इवेंट। ओके, ये एक बात मुझे समझ में आ गई है, दोनों को बोलता हूँ, अनमोल को और आर्यन को, कि इस दुनिया में अगर आपको बड़ा काम करना है, आप बिना टीम के बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से रेयर केसेस हैं, लाइक दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। वो एक बहुत इक्का दुक्का केस है जहां अकेले एक आदमी ने बहुत बड़ा काम कर डाला। अदरवाइज बड़े काम करने के लिए आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जब भी कोई काम करना सोच रहे हैं, करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप देखिए कैसे आप एक टीम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। तो जहां मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसमें किस किस को इन्वॉल्व करूं ताकि मैं इस काम को आराम से कर पाऊं, और जो भी मुझे इस काम को करने के बाद एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे कुछ लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट आई विल शेयर विथ माय टीम। ये काम मैंने नहीं किया है, मेरी टीम ने किया है। यहीं पर मैं आपको अनाउंस करता हूं कि द पर्पस ऑफ दिस बॉडी माइंड सोल इज वेरी सिंपल। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आई एम गोइंग टू टेक द सेशन एवरी वीक। आगे चल करके मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओनली, इफ यू आर रेडी, आर्यन बोल से कि नहीं सर इस बार का सेशन मैं लूंगा, प्लीज कम फॉरवर्ड, लाइक हाउ वी आर डूइंग इन टीचर्स की पाठशाला, राइट। सबको मौका मिलना चाहिए। अगर आपके टीम में जितने भी लोग हैं सब के सब इंप्रूव हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ऑटोमेटिकली आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। सो वट एवर वर्क यू आर डूइंग, ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग अ टीम। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप पता कीजिए कि मेरे कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ मिल करके, जुड़ करके मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ओके, नाउ अनमोल, द नेक्स्ट वन वर्क्स वेल अंडर प्रेशर। I have a question. हाँ, tell me. Can I ask? Yes. Yes sir. सर हम क्या करेंगे अगर टीम हम बनाने में मतलब सक्षम ना हो जाए? जैसे सर हमें टीम नहीं बन पाता है, हमारा मतलब इंडिविजुअली रह जाते हैं हम लोग, हमारे कॉम्पिटिटर्स ही हो जाते हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स ही नहीं बन पाते हैं, ऐसा होता है।
तो सर उसमें क्या किया जाए? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी तो ग्रुप बन ही सकते हैं, तो कॉलेज में भी ऐसा होता है कि क्लासरूम में 5 to 6 गर्ल्स एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, बट मेरा क्या होता है सर कि हम कॉम्पिटिटर बन जाते हैं सबके, या फिर अलग हो जाते हैं सबसे। देखो, कोई भी आदमी हमारा कंप्यूटर क्यों बनता है? जब उसको लगता है कि भाई सामने वाला जो है, he or she is going to you can become bigger than me, मुझसे बड़ा हो जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा, then he or she become computer। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारा वो सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, ये मैं बतलाऊंगा, वो तुम बतलाओ, देन मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। तो जरूरत है बैठ करके डिस्कस करने की, अपने आप रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। ओके, जैसे एक बात सर बोलूंगा। हाँ हाँ, राइट। जैसे अभी दीदी ने बोला कि वो टीम नहीं बन पाती है पढ़ने के लिए, तो अभी सर जैसे मैं अपना HM कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरी टीम है, मतलब एक सर बंदे हैं जो पंजाब के, एक तेलंगाना, एक राजस्थान, सर डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट जुड़ के स्टडी कर रहे हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ है। जैसे मैं सर्विस एप्टीट्यूड गाइड करता हूँ, कोई मेरे को मैथ्स गाइड करता है, तो आपस में पांचों की बॉन्डिंग है कि ये मैं करूंगा, ये तुम करो। एक्सीलेंट। तो फिर तो हम लोग का सर बॉन्ड बना हुआ है, तो एक टीम बन के काम कर रहे हैं। और ये भी सही है आर्यन, अनमोल, कि ये काम बिल्कुल तुरंत नहीं होगा। अभी आप देखो, जो हमने शुरू किया है टीचर्स की पाठशाला या बॉडी माइंड सोल, आपको झटके में लोग नहीं मिलेंगे। देखो, आज 8 बच्चों को आना था, 2 बच्चे आए, 6 बच्चे नहीं आए हैं, बट आपको छोड़ना नहीं होगा हिम्मत। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। टीचर्स की पाठशाला में देखो, अब 12-15 लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज शुरू में समझ में नहीं आता है कि मैं इनके साथ क्यों जुड़ूं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जुड़ने का जब लगता है कि नहीं फायदा हो रहा है, देन दे आर गोइंग टू बी विथ यू। सो आप हिम्मत मत हारो, आप लोगों से बात करते रहो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको बताओ कैसे उनसे मुझे फायदा है, मुझसे उनको फायदा है। आई थिंक टीम विल फॉर्म। ओके, वर्क्स वेल अंडर प्रेशर। अनमोल? सर ऑर्गेनाइज्ड, आई थिंक। अच्छा, सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड पहले। यस सर। सर ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आई थिंक ये होता है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी हम लोग को वर्क मिलता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होता है। और ऑर्गेनाइज्ड का सबसे पहला नियम है कि हम लोग को टाइम मैनेजमेंट, फर्स्टली हम लोग को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड देन आफ्टर हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि 1 by 1 हम लोग को फर्स्ट थिंग क्या करना है एंड देन आफ्टर क्या करना है। मतलब हम लोग के पास पूरा प्रोसीड्योर होना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, कि लास्ट में हम किस वर्क को करेंगे और फर्स्ट में हम लोग किस वर्क को करेंगे। और सर दैट्स इट, आई थिंक। ऑर्गेनाइज मतलब मेरे कबर्ड से लेकर के, मेरे रूम से लेकर के, मेरे घर से लेकर के, मेरा सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। कहीं भी मैं मेस में नहीं हूँ। देयर इज नो मेस अराउंड मी, राइट? मैं हर अपना काम बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे से करता हूँ, टाइम पे पहुँचता हूँ, और चीज़ों को एडवांस में प्लानिंग करके उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देन आई एम ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा आदमी कभी भी भागता दौड़ता आपको नहीं दिखेगा, बड़ा ही शांत रहेगा और बड़े ढंग से वो काम करेगा। और मुझे अगर ज्वाइन करना है इस वर्कशॉप को, तो मैं अपने पूरे दिन को उस हिसाब से सेट करूंगा कि बिल्कुल मैं 5 बजे से 10 मिनट पहले अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। आई विल स्विच ऑन माई मोबाइल और माई लैपटॉप एंड आई विल बी ऑन टाइम। ओके, वर्क्स वेल अंडर प्रेशर। आर्यन, इजी है बहुत। यस सर, वर्क्स विद अंडर प्रेशर से सर हम लोग थोड़ा मैनर में होते हैं कि ये काम इतने टाइम फ्रेम में करना है तो करना है। एक्सीलेंट। और इसमें सर मजा भी आता है, मतलब एक प्रेशर हो ऊपर और डेडलाइन कंप्लीट करने में सर एक मजा भी आता है वर्क करने में। यानी कि मैं जो कुछ भी काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने ऊपर प्रेशर डालता हूँ खुद से। टाइमलाइन, ये काम अनमोल को जब किताब दिया, मैंने कहा अनमोल इतने दिन में खत्म करना है, वो प्रेशर है। अगर वो प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? हम आराम से भाई आज का काम कल, कल का काम परसों टालते रहेंगे, राइट? सो ऑलवेज थोड़ा सा हमारे काम में, हमारे स्टडीज में, सब जगह प्रेशर का होना आवश्यक है। अब जैसे सर कल टीचर्स की पाठशाला है, तो आपने बोला है PDF होना चाहिए, तो एक मेरे पे अभी प्रेशर है कि PDF बनाना है तभी जाना है। तो फिर एक है कि हाँ बनाना है तो बनाना है, आज बना लेना है। वेरी गुड। कहीं ना कहीं काम करता है। करेक्ट करेक्ट। अनमोल, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आसान है बहुत।
यस सर, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी जॉब हो, कोई भी जगह हो, कम्युनिटी हो, हम लोग अगर इफेक्टिवली अपने बातों को किसी और के सामने समझा पाते हैं, तभी हम लोग एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। और कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है दो लोग के बीच का बात। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने ही बातों को दूसरे तक पहुंचा पाए, उनकी बातों को समझना भी एक बढ़िया। कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब हम उनको समझ पाएंगे और खुद को भी समझा पाएंगे, देन आफ्टर हम लोग एक किसी रिजोल्यूशन या फिर किसी चीज पे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और यही हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेटर का एक निशानी है। बहुत बढ़िया। हम बोलते भी हैं और हम सुनते भी हैं, दैट इज इफेक्टिव हाँ, हमें कम्युनिकेटर। पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, एंड देन आफ्टर दोनों की बातों को सुन के उसका रिजल्ट लाना होगा। वेरी गुड। आर्यन, फ्लेक्सिबल। सर फ्लेक्सिबल मींस सर हमें मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड आते हैं, अप्स एंड डाउन, जहां हमें किसी सामने वाले की बात अच्छी नहीं हो लगती है, बट हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर मेरा कोई काम उससे करवाना है और उसने कुछ मेरे को नहीं करना है, बट मैं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम निकलना है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अप्स एंड डाउन्स दोनों होने चाहिए, हमेशा अप पे ही लोगों को नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर 12th प्लस में हो आप लोग, मतलब 12th आप लोग पास कर चुके हो। घर में अपने मॉम एंड डैड के साथ ही यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो कि आपके मॉम को अच्छा नहीं लगेगा, डैड को अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको तो मॉम एंड डैड मालूम है कि दे आर माई वेल विशर्स। तो आपको एक बीच का रास्ता निकाल करके आपको आगे बढ़ते रहना है। जब मैं इस शहर में वापस आ रहा था तो मेरे डैड ने बोला कि ये एक बहुत ही बेकार डिसीजन है, बट मैं आई वॉज फ्लेक्सिबल, आई टॉक टू हिम, आई डिस्कस्ड विथ हिम, और मैंने एक रास्ता निकाला। सो लाइफ में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करती है किसी भी सिचुएशन में अपने को अडेप्ट करने के लिए, राइट। लास्ट वन वेरी इजी, कॉन्फिडेंट, अनमोल। अगर हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कभी भी, तभी हम लोग खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर हम खुद में ही, अगर हमें कुछ आंसर आता भी है किसी क्वेश्चन का, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, और फिर वो निगेटिव एटीट्यूड भी शो करता है हमारे अंदर। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस हर फील्ड में ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। Fantastic. And this is the message, keep evolving. आप देख रहे होंगे कि वो जो बटरफ्लाई है वो अपने उस प्यूपा से बाहर निकली है बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बट उतना स्ट्रगल करने के बाद ही उसे वो सारे विंग्स और वो सुंदरता, वो उड़ने का स्किल सब उसको मिला है। सो हमें भी उसी तरह स्ट्रगल करके अपनी प्यूपा से बाहर निकल करके एक शानदार ह्यूमन बीइंग बनना है, राइट। इसको मैं आज क्विट करता हूँ, इसको भी क्विट करता हूँ। दिस इज आवर टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीक, 5H, हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्ट, हाई थिंकिंग एंड हम्बल। वी विल टॉक ऑन दिस। इसके अलावा अगर आप दोनों में से किसी के पास भी कोई प्रेजेंटेशन है which you want to showcase on this platform, let me know. I will give you a window of 15 minutes. 15 मिनट आपको मिलेंगे. You can put up your theme or your topic in front of others, right? मेरे ख्याल से that's it. ये हमारा आज का सेशन था. What I will request as a homework from both of you, that जो हमारे वो 10 soft skills हैं, I will send you the PDF and try to analyze and share with me कि आपके अंदर वो जो टॉप 10 स्किल्स हैं वो किस प्रायोरिटी में है. मतलब कौन सा स्किल उसमें से आपके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा है, नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है, so that in coming time you are going to focus on the number 10. कैसे मैं उसको इम्प्रूव करके नंबर 1 पे लेकर के आऊँ, राइट. एक अपना आप लोग खुद का प्लानिंग कर लीजिए कि how I am going to develop those 10 skills in our personality. Fine. Any other question which you want to ask? Anmol, it was fine? Yes sir, it was good. सर टीम वाला जो है प्रॉब्लम सर, वो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए. सबसे लास्ट पे 10th वाला ही है. Nothing to worry. We can always do a discussion one-on-one on which we will discuss कि वो कैसे करना है. So I will connect with you one-on-one कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, and then we'll find out different ways. एक तरीका निकालेंगे, उस पर काम करेंगे.
अगर वो काम कर गया अच्छी बात है, नहीं काम किया सेकंड रास्ता निकालेंगे. Okay, so not to worry, first you plan your actions, कैसे आप काम करने वाले हैं, and then we'll discuss on that. And also discuss these 10 skills with all your nears and dears, your friends. Okay, Aryan, क्या बोल रहे हैं आप?